हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का सेकंड टाइप विच इज़ अ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। आज हम कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है ये देखेंगे, प्लस इसके जो टाइप्स हैं रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जब स्टार्टिंग में मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन देखा था, वहाँ हमने देखा था कि कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है। अ स्टेशन consult one another to find which station has right to send. Okay, so a station cannot send until it has been authorized by the other station. So here station needs to a permission to send the data, so he needs to find which station has right to send. So for that purpose we use three types: reservation, polling and token passing. Okay, so what we can say that controlled access protocol are those where a specific node has to gain permission before transmitting the data over the network. Means यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आपके जो nodes होते हैं उनकी सबकी प्रायोरिटी सेम नहीं होगी। हमने जब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल देखा था उसमें कोई भी सुपीरियर नोड नहीं था, सारे सेम लेवल पे थे। जबकि यहाँ पे क्या होता है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में specific node has to gain a permission before transmitting data over the network. So this permission can be granted by a central authority or by following a predetermined set of rules. So how this permission acquire? It will be granted by your central authority or by following a predetermined set of rules. So here we have three types: reservation, polling and token passing. So starting with reservation based protocol. So what reservation based protocol means? It is a multiple access control method where nodes reserve transmission slots before the data transmission. Means whenever a node wants to transmit a data, it needs to reserve the transmission slots. So how it will work? Nodes request the transmission slots from a central authority. See यहाँ पर हमारे पास क्या है, central authority. So a node requests a transmission slot from a central authority. Then your central authority allocates slot to the nodes and preventing the collision. Your central authority allocates slots to nodes preventing the collision. Node transmit the data during their allocated slot. So central authority जो भी slot उसको allocate करेगी node को, so node उसी जो period है उसी के अंदर data को transmit कर पाएगा. ओके, सो एप्लीकेशंस इसकी क्या हो जाती हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क में आपका ये प्रोटोकॉल यूज होता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट विल बी अ प्रेडिक्टेबल एक्सेस एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो हम देखते हैं कैसे होता है। सो see, these are the time slots. 1 means the slot is occupied, 0 means the slot is free. So 1 जो स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन है उसने स्लॉट ऑक्यूपाई कर रखा है, अभी थर्ड स्टेशन ने कर रखा है, फोर्थ स्टेशन ने कर रखा है। तो जो स्टेशन स्लॉट्स ऑक्यूपाइड करेंगे ओनली वही स्टेशन आपकी डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस केस में ये 3 स्टेशंस ने डेटा ट्रांसमिट किया। नेक्स्ट टाइम ओनली डिवाइस वन, ओनली स्टेशन वन ऑक्यूपाई द स्लॉट, सो इट विल ट्रांसमिट द डेटा। आफ्टर दैट द रिजर्वेशन फ्रेम, कोई भी किसी भी डिवाइस ने स्लॉट को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है तो यहाँ पे चैनल आपका क्या हो जाएगा? आइडियल। तो इस तरीके से रिजर्वेशन फ्रेम होता है। रिजर्वेशन फ्रेम आपको बताता है कि कौन से स्टेशन ने टाइम स्लॉट को ऑक्यूपाई कर रखा है और कौन सा अभी फ्री है। ओके, नेक्स्ट आपका होता है पोलिंग प्रोटोकॉल। पोलिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हियर it is a multiple access control method where a central authority polls nodes for a data transmission. Your central authority polls nodes for a data transmission. So how it works? Central authority polls nodes sequentially. Okay, it will perform the polling nodes sequentially. Nodes transmit the data when polled and it ensures orderly access to the network. So एग्जाम्पल्स इसके एप्लीकेशन के क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में काम आता है ये प्रोटोकॉल और आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस एंड आल्सो रिड्यूस द कोलिजन एंड कंटेंशन। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीज द लेटेंसी ड्यू टू द पोलिंग ओवरहेड। ओके,
क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, पोलिंग करानी होगी, तो पोलिंग का ओवरहेड बढ़ जाएगा, उससे लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है। एंड अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये अभी हम जब इसको समझेंगे इसके डायग्राम के थ्रू तब आपको समझ आएगा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल एग्जांपल एक तरीके से आप टोकन पासिंग को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आप क्या करते हो, नोट विल ट्रांसमिट ओनली व्हेन होल्डिंग अ टोकन एंड टोकन सर्कुलेट्स दी अमंग नोड्स। सो बेसिकली टोकन हियर रेफर्स द पोलिंग बिटवीन द नोड्स। तो कैसे आप इसको समझ सकते हैं, पोलिंग के अंदर क्या होता है, पीसीज जो है या स्टेशन या डिवाइसेस आप बोलेंगे कनेक्टेड होती हैं। इन्हीं डिवाइसेस में से एक डिवाइस आपकी एज अ मास्टर वर्क करती है, जो कि पोलिंग का यहाँ पे काम करती है, और पोलिंग करके डिसाइड करती है कि कौन से डेटा को जिसको भी ट्रांसमिट करना है तो वहां पे वो उसको पोल करके दिखेगी, ठीक है, डिवाइस को। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हैं पोलिंग की एफिशिएंसी होती है ट्रांसमिशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम प्लस पोलिंग का कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि सपोज आपका ये जो मास्टर डिवाइस है अगर ये फेल हो जाती है, यहाँ पे फेलियर हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, आपके डिवाइसेस जो होंगे वो फिर क्योस क्रिएट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि डिवाइसेस को पता नहीं होगा कि पोलिंग जो प्रोटोकॉल है वो कैसे आगे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि जो मास्टर है जो उसको ग्रांट करवा रहे हैं पोलिंग के थ्रू ट्रांसमिशन को, वो ही आपका फेल हो गया है, तो दे डिवाइसेस विल गेट अ कियोस्क। ओके, नेक्स्ट इज योर टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। तो टोकन पासिंग प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो टोकन पासिंग इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल वेयर नोड्स ट्रांसमिट द डेटा ओनली व्हेन इन पोजीशन ऑफ अ स्पेशल टोकन। ठीक है, मींस इसके अंदर एक स्पेशल टोकन होता है, तो जब भी डेटा ट्रांसमिट करना होता है नोड को, तो नोड सिर्फ डेटा तभी ट्रांसमिट करता है जब उस टोकन को वो होल्ड करके रखता है। जो हमने टोकन रिंग, जब हमने टोपोलॉजीज बात करी थी तब हमने रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, वहां मैंने आपको समझाया था कि रिंग के अंदर क्या होता है, एक टोकन पास होता है और रिंग फॉर्म में आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और ये टोकन पास होता है वन बाय वन टू अदर डिवाइसेस, एंड व्हेनेवर अ device wants to transmit the data, it will hold the token, transmit the data, and after the successful transmission it will release the token to the channel again. Okay, so however token circulates among nodes in a predetermined sequence. Okay, token इसमें circulate होगा, only the nodes possessing the token can transmit the data, means only the node which holds the token can transmit the data, and after the transmission the node passes the token to the next node in the sequence. So after the successful transmission the node passes to the टोकन टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, आपके टोकन रिंग हो जाएंगी लोकल एरिया नेटवर्क्स में, एंड ऑल्सो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेरेंस, एफडीडीआई नेटवर्क्स में भी आपके क्या यूज होते हैं, टोकन पासिंग प्रोटोकॉल्स। यहाँ मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ, कई बार जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बनते हैं वहीं वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि सपोज टोकन रिंग लेंस है तो उसमें कौन सा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होता है, या फिर एफडीडीआई फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस में कौन सा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए एग्जांपल्स कौन से किस में अप्लाई होते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इट इंश्योर्स द फेयर एक्सेस टू द नेटवर्क एंड ऑल्सो एलिमिनेट द कोलिजन एंड कंटेंशन। बट यहाँ पे भी ओवरहेड किसका हो जाएगा, आपको एक टोकन भी मैनेज करना होगा, सो इट विल क्रिएट एन ओवरहेड, और ऑल्सो हियर ऑल्सो द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इफ टोकन इज लॉस्ट और करप्टेड। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो क्या हो जाएगा, IEEE 802.5 टोकन रिंग इज द एग्जाम्पल फॉर दिस प्रोटोकॉल। Here nodes forms a logical ring topology and token circulates clockwise granting the nodes transmission opportunity. ओके, तो अगर यहाँ पे मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो सपोज ये 4 स्टेशन है, स्टेशन 1, 2, 3 एंड 4, ये रिंग टोपोलॉजी में अरेंज है। दिस इज द टोकन विच इज सर्कुलेट अमंग दीज डिवाइसेस। Suppose if station 2 wants to send the data, then it will hold the token first if it is free, then transmit the data, and after the transmission it again release the token into the channel. And if token is occupied by the other channel, then it has to wait while the token will free. So this is all about your controlled access protocols. This is also a type of your multiple access protocol, and here we have discussed reservation protocol, polling based protocol, and token passing protocol. I hope you will understand this lecture. So
नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा चैनलाइजेशन का, जो कि हमारे इसका थर्ड टाइप होता है हमारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का, दिस चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.